حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو اس وقت سورج کو گرہن لگ گیا، آسمان سے خون برستا رہا، اور جو کپڑے اس خون سے رنگے گئے وہ پھٹ تو گئے پر ان کی سرخی نہیں گئی، اور ایسی جڑی بوٹیاں جو تر و تازہ تھیں ان کو لوگوں نے ایک ہی سیکنڈ میں خشک ہوتے ہوئے دیکھا، جیسے آگ میں جلا دی گئی ہوں۔ اور میں عرض کر چکا کہ یزیدی فوج نے گوشت پکایا تو وہ بھی زہر کی طرح کڑوا ہو گیا، کھانے کے قابل نہیں رہا، اور انہوں نے جانوروں کو ذبح کیا تو خون کی بجائے ان میں سے آگ نکلی، اور 3 دن مکمل اندھیرا چھا گیا۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا کہ بیت المقدس میں جو پتھر بھی اٹھایا جاتا نیچے سے تازہ خون نکلتا۔ اب یہ امام حسین کا سر لے کر اور یہ اہل بیت کا قافلہ لے کر جب یزید کے پاس پہنچے تو اس وقت یزید کے پاس ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا، وہ بادشاہ روم کا سفیر تھا۔ اس نے کہا یہ سر کس کا ہے اور یہ قافلہ کون ہے جو تمہارے پاس لایا گیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ حسین بن علی کا سر ہے اور یہ انہی کے خاندان کے باقی لوگ ہیں۔ اس نے حیران ہو کے پوچھا کہ یہ حسین ابن علی فاطمہ کا بیٹا ہے؟ کہتا ہے ہاں، یعنی یہ تمہارے نبی علیہ السلام کا نواسا ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ تو اس نے کہا تم کیسے لوگ ہو؟ ہمارے پاس ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا کھر رکھا ہوا ہے، اس بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پر سواری کرتے تھے یہ اس گدھے کا کھر ہے، تو ہر سال جس طرح تم حج کرنے کے لیے آتے ہو اسی طرح عیسائی ہر سال ایک دن اس کھر کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تم کیسے لوگ ہو؟ تم نے اپنے نبی علیہ السلام کے نواسے کو ذبح کر دیا پورے خاندان سمیت۔ یعنی کم و بیش 700 سال گزرنے کے بعد ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے کھر کی یہ تعظیم کرتے ہیں کہ اس کی زیارت کرنے کے لیے عیسائی پوری دنیا سے جمع ہوتے ہیں، جس طرح تم حج کرنے کے لیے جمع ہوتے ہو۔ تم کیسے امتی ہو؟ ہمیں بھی دیکھو، اپنے آپ کو بھی دیکھو۔ دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ ہم سچے، اور ہمارا عمل بھی دیکھو، اپنا عمل بھی دیکھو۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا کھر ہے اور ادھر تمہارے آقا کے کندھوں پر کھیلنے والا امام حسین ہے۔ ہمارا ادب بھی دیکھو اور اپنی بے ادبی بھی دیکھو۔ یہ اس عیسائی نے کہا۔ وہ ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا تم نے یہ سلوک کیا اپنے نبی علیہ السلام کی آل کے ساتھ، یہ ان کی بیٹی کا بیٹا ہے، ان کو تو نبی علیہ السلام نے خود اپنا بیٹا بھی کہا۔ اس نے کہا میری بھی سنو، میں یہودی ہوں اور میرے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی اور رسول ہیں جن کو زبور عطا کی گئی۔ اس نے کہا میں ان کی نسل میں سے ان کا بیٹا ہوں، یعنی میرے بارے میں مشہور یہ ہے، اور اگر میں اپنے باپ سے گننا شروع کروں نا تو میرے علم کے مطابق 70 نسلیں گزرتی ہیں اور پھر داؤد علیہ السلام کا نام آتا ہے، یعنی میں 70 پشتوں کے بعد داؤد علیہ السلام کا بیٹا ہوں، یہ مشہور ہے میرے بارے میں۔ اور یہودی میری اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ وہ تمہارے گمان میں بھی نہیں ہے، تو تم نے اپنے نبی علیہ السلام کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ یہ یزید کے پاس بیٹھے یہودی اور عیسائی اسے تانے دے رہے ہیں، اور ہمارا عمل بھی دیکھو، ہمیں بھی دیکھو اور اپنا عمل بھی دیکھو کہ تم نے کیا کیا۔ اب یہاں سے اس نے یہ قافلہ واپس روانہ کیا دمشق سے مدینہ الرسول کی طرف، چند سپاہی ساتھ بھیجے کہ امام زین العابدین اور امام حسین کے سر اور یہ باقی جو قافلہ ہے ان کو واپس مدینے بھیج دیا جائے، کیونکہ اپنے گمان میں جو وہ کرنا چاہ رہا تھا اس نے کر لیا تھا۔ اب وہ چاہتا یہ تھا میں ان کو واپس بھیج دوں تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں ان کا دشمن نہیں ہوں، وہ جو کیا وہ کوفے والوں نے کیا تو چلے کچھ نرمی ہوگی میرے بارے میں اور میری حکومت ٹوٹے گی نہیں، اس لیے اس نے مکر کرتے ہوئے امام حسین کے قافلوں پر لعنت بھی کی۔ اب یہ قافلہ وہاں سے واپس پلٹا
तो इमाम हुसैन का सर लेकर के ये काफिला वापस मदीने आया। जहां से इमाम हुसैन निकले थे, मदीना से आप मक्का गए थे और मक्का से आप कुफा की तरफ गए थे। अब ये काफिला मक्के नहीं गया बल्कि मदीने पहुंचा और हजरत इमाम हुसैन का सर सैयदा फातिमा ज़हरा आपकी वालिदा मोहतरमा के पहलू में दफन कर दिया गया। यानी आपका सर जन्नतुल बकी में अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र अनवर के पास दफन है। जिस्म मुबारक आपका मैदान करबला में दफन है। अब जब मदीने वाले लोगों ने यह काफिला देखा तो उन्होंने पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, इमाम हुसैन कहां है, उनके बेटे कहां है, उनके भाई कहां है, उनका सारा खानदान, वो तो यहां से जब गए थे तो पूरा खानदान साथ लेके गए थे, तो अब तुम्हारे साथ क्या हुआ? वो 6 माह का अली असगर कहां है, 18 साल का अली अकबर कहां है, ओनो मोहम्मद कहां है, कासिम कहां है, और इमाम मुस्लिम का सारा खानदान, उनके बेटे, उनके भाई, उनके भतीजे, वो कहां है सारे, हुआ क्या तुम्हारे साथ? तो ये सारी कहानी फिर यहां बयान की गई मदीनातुर रसूल में। ऐसे ऐसे हम कुफा की तरफ मक्का से निकल करके गए और ये सलूक हमारे साथ किया गया, फिर वहां से कैसे हमें दमिश्क लेके जाया गया, फिर वहां से हम वापिस आ रहे हैं। अब जाहिर है जब ऐसी सूरत हाल मदीने के लोगों ने सुनी और फिर ये खबरें मक्का में भी पहुंची कि मैदान करबला में इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ ये सलूक किया गया, तो अब उसी वक्त बायक वक्त सारे मक्के और सारे मदीने के लोगों ने यजीद की बैतें तोड़ दी। अक्सर मुसलमान उसकी बात कर चुके थे कि तू हमारा खलीफा है। बल्कि यहां इब्ने कसीर ने लिखा बिदाया वन निहाया में कि मदीनातुर रसूल हजूर के शहर में तो जूतियों का ढेर लग गया। लोगों ने अपने जूते उतार करके फेंके और साथ ये कहा जैसे हमने जूते उतार के फेंके हैं ऐसे ही हम यजीद की बात को भी तोड़ते हैं। अब इधर यह वाकया हुआ, उधर क्या हुआ? अब यजीद समझता यह था कि मेरी मर्जी के आगे सबसे बड़ी रुकावट इमाम हुसैन है और अब वो दुनिया में नहीं है। मैंने उनके भाई भी जिबा करवा दिए, उनके बेटे भी, उनके भांजे भी, भतीजे भी, तो अब मेरे रास्ते में आने वाला कोई भी नहीं है। अगर कोई था भी तो इतने जुल्म के बाद वो खुद ही डर जाएगा। इमाम वाकदी ने लिखा कि हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया हुआ, उनके बेटे अब्दुल्ला कहते हैं कि इमाम हुसैन के जाने के बाद यजीद ने सारी हदों को तोड़ा। सूद की इजाजत दे दी गई, शराबें सरेआम पिए जाने लगी, गाने बाजों की महफिलें सरेआम होने लगी, यहां तक के बहन भाइयों का आपस में निकाह होने लगा और नमाजों की पाबंदी उठ गई। ये सब कुछ जब सरेआम होने लगा, यानी वो जानता यह था कि इमाम हुसैन रोकेंगे मुझे, अब वो नहीं है तो मैं जो चाहूं करूं। तो वो हजरत हंजला के बेटे अब्दुल्ला कहते हैं हमें यह डर पड़ गया अगर हमने इसकी बात ना तोड़ी तो आसमान से पत्थर हम पर भी नाज़िल हो जाएंगे, इसलिए हमने उसकी करतूतें देख करके उसकी बात तोड़ दी। यानी कुछ वो लोग थे जिन्होंने इमाम हुसैन पर होने वाला जुल्म सुन के बातें तोड़ी और कुछ वो थे जिन्होंने उसकी करतूतें देख करके बाद में बात तोड़ दी। अब जब ये वाकया हुआ तो ये खबरें तो उसकी जो यहां हुई खबरें तो उसके पास तो पहुंची दमिश्क में कि इस तरह मदीने और मक्के के लोगों ने कुल्ली तौर पर तेरी बात तोड़ दी है और वो तुझे बादशाह और खलीफा नहीं मानते। यह सबब है कि शिया बाद वाले वाकया बयान नहीं करेंगे। अगर वो ये बयान करेंगे तो पता चलेगा कि वो यजीदियों कुफियों के सिवा सारी उम्मत ही इमाम हुसैन को सलाम करने वाली थी, तभी तो वो बैठे तोड़ रहे हैं। अब जब यह वाकया हुआ तो उसने दमिश्क से फौज को रवाना किया, अब तुम जाओ और जिन्होंने मेरी बात तोड़ी है उनकी गर्दनें उड़ा दी जाएं। जो करबला में हुआ वो तो अलग कहानी है, जुल्म की दास्तान। अब जो यहां हुआ वो उससे भी ज्यादा जुल्म है। उसकी फौज मदीनातुर रसूल में पहुंची जो कि हरम है। जिस मक्का और मदीना को बचाने के लिए हजरत इमाम हुसैन ने इन दोनों शहरों को छोड़ करके करबला का रुख किया कि इन शहरों की बेहुरमती ना हो, लेकिन बाद में उस नापाक ने उन शहरों की बेहुरमती करवाई।
इसका मतलब यह हुआ कि इमाम हुसैन जानते थे कि इस मनहूस ने इन शहरों की हुर्मत को पामाल करना है, इन शहरों की बेअदबी करनी है, लेकिन यह धब्बा भी मुझ पर ना आए। कल को मुझे नाम मानने वाले ये ना कहे कि सब कुछ इमाम हुसैन की वजह से हुआ है, इसने नापाकी करनी तो है लेकिन वो सारी इसी के खाते में जाए, मेरा को नाम भी ना ले। इसलिए आपने मक्का मदीना को छोड़ा। शहीद तो आपने होना ही होना था। वो आपने कहा भी कि शहीद मैंने होना है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मदीना और मक्का की हुर्मत पामाल हो, ये नापाकी किसी और के खाते में जाए। अब इसकी फौज यहां आई मदीना तो रसूल में, और यहां इन्होंने एक मुसलमान भी जिंदा नहीं छोड़ा। बस वो मुसलमान बचे जो छुप गए, यहां से भाग के गारों में चले गए, या जिन्होंने अपने दरवाजे मुकफ्फल कर लिए, उनमें से भी चंद एक बचे। और यजीद ने उन्हें कह करके भेजा कि मैं तुम्हारे लिए मदीना हलाल करता हूं 3 दिनों के लिए, जो चाहना वहां करना। और यजीदी फौज ने अपनी सवारियां यानी घोड़े मस्जिद नबवी के अंदर बांधे। 3 दिन वो यहां बंधे रहे और ये खून की यहां बार में होली खेलते रहे। और उन नपाकों की सवारियों ने नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी मस्जिद नबवी में पेशाब किया और वो यहां लिद करते रहे। बाज़ रवायात में है कि उनका पेशाब नबी अलैहिस्सलाम के रोजे को भी टच करता रहा। और 3 दिन ना मस्जिद नबवी में अजान हुई, ना कामत हुई, ना नमाज हुई। इमाम दारमी अपनी सुनन में हदीस पाक लाए, हदीस नंबर 94। हजरत सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं, लम्मा काना अय्यामुल हर्रा, जब वो दिन आए जब यजीद की फौज ने आकर यहां बेहुरमती की, तो क्या हुआ, लम यूजन फी मस्जिद नबी, हजूर की मस्जिद में अजान नहीं हुई सलासन 3 दिन, व लम युकम, और ना इकामत हुई ना ही नमाज हुई। यानी सारे लोग भाग गए यहां से, मदीना से, या शहीद कर दिए गए। तो ये हजरत सईद नबीना थे, तो ये हजूर के रोजे के पास ही बैठ गए। अर्ज की या रसूलल्लाह मैं कहां भागूं, मेरी तो आंखें भी नहीं है। तो यहां ये हजूर की कब्र के पास बैठ गए। अब यजीदी फौज ने कहा कि इनको भी कत्ल कर दिया जाए। कुछ ने कहा यार ये तो नबीना है बेचारा, ये लगता भी मजनून है, हमें कोई पागल है, इसको क्या करना है कत्ल करके। तो कहते हैं मुझे उन्होंने इसलिए छोड़ दिया कि ये नबीना है, ये कोई पागल है, मजनून है, वरना ये यहां से भाग जाता और लगता से इसका कोई है भी नहीं, वरना वो इसको लेके यहां से भाग जाते। तो ये बेचारा वैसे मजनू है भी नबीना, पागल है, इसको रहने दो। तो फिर वो क्या कहते हैं, कहते हैं लम यबरह सईद बिन मुसय्यब, कि सईद बिन मुसय्यब वो जो यहां रुके हुए थे वो भाग नहीं सके। तो वो कहते हैं वकाना ला यारिफ वक्त सलाह, अब मैं था नबीना, ना मुझे नमाज के वक्त का पता चलता कि कौन सी नमाज का वक्त है। इल्लाह, मगर बिहमहमतिन, एक आवाज आती, यस्माउहा, जिसको मैं सुनता नमाज के वक्त, मिन कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी की कब्र से आवाज आती, जिससे मुझे पता चलता ये जोहर का वक्त है, ये असर का वक्त है, ये मगरिब का वक्त है, ये इशा का वक्त है, ये फजर का वक्त है। ये कुछ इन्होंने किया यहां मदीना में आके कि हुजूर की मस्जिद में अजान देने वाला कोई नहीं और इनका नमाज से तल्ला भी कोई नहीं। तभी तो वो परेशान हुए। चलो ये कलमा तो पढ़ रहे थे ना, चाहे बड़े ही जालिम थे, वो लोग जुबान से सही दिल से ना सही, कम से कम को शर्म करते, यहां मस्जिद की बेहुरमती तो ना करते, सवारियां अपनी बार बांधते, और कम से कम यहां अजान तो पढ़ते, नमाज तो पढ़ते, बताते कि हम नमाजी है। लेकिन ऐसा नहीं है, नमाजी वो है जो इमाम हुसैन उनके पीछे चलने वाले। और यहां देखें इनका काम, इससे हम फर्क भी महसूस करें कि हुसैनी कौन है और नाम का हुसैनी कौन है। नमाज नहीं पढ़ी तो मैदान करबला में भी कूफियों ने नहीं पढ़ी। इमाम हुसैन जंग में भी आगे बंदों को खड़ा करके नमाज पढ़ी है, नमाज खौफ। और यहां देखें ये मदीने में आकर के भी नमाज नहीं पढ़ रहे, अज़ान भी नहीं दे रहे। और इसलिए उस अजीम ताबी सईद इब्न मुसय्यब को नबी अलैहिस्सलाम की कब्र से आवाज आती रही और तब उन्होंने नमाजें पढ़ी। यहां इन्होंने यह कुछ किया।
मदीना तो रसूल में इन्होंने कमो बेश 700 सहाबा को ज़िबा किया। मैदान करबला में सिर्फ 72 थे, सिर्फ 72। यहां 700 सहाबा ज़िबा किए गए, 10,000 ताबईन को ज़िबा किया गया जो सहाबा के शरीरत थे। और ऐसी बेहुरमती की गई जो यहां मिंबर पे बैठ के बयान नहीं हो सकती। नबी अलैहि सलाम के शहर मदीना में अब यहां बस नहीं हुई, यहां ये सारा शहर मदीना उजाड़ करके 3 दिन रुकने के बाद यहां से चले मक्का की तरफ। तो उन्होंने भी बैठ तोड़ी हुई थी, तो यहां से कुछ भागे मुसलमान वहां पहले पहुंच चुके थे। उन्होंने बताया कि वहां उन्होंने ऐसा काम किया, हम तो जान बचा के भागे। अब यहां मक्कातुल मुकरमा में हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, ये अबू बकर सिद्दीक के नवासे, मैदान करबला में सामने खड़े होने वाले नबी पाक के नवासे, और मक्का में सामने खड़े होने वाले अबू बकर सिद्दीक के नवासे। उन्होंने अपनी तैयारी की हुई थी इनसे मुकाबला करने के लिए, लेकिन ज़ाहिर तैयारी कैसी करनी थी, ये चंद लोग थे, ये पूरी फौज थी। वो दफाई पोजीशन में जाते 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 हरम के अंदर चले गए। अब इन्होंने मिनजनीकों से काबातुल्लाह पर पत्थर बरसाए। दमिश्क से आई यजीद की फौज ने, कुफा वालों ने नहीं, दमिश्क से आई फौज ने जो यजीद के पास से आई। इन्होंने संगबारी की मक्कातुल मुकरमा, अल्लाह के हरम पर इतने पत्थर बरसाए कि सारा मताफ पत्थरों से भर गया। सतून गिरे, पत्थर से पत्थर टकराए, चिंगारियां निकली, काबातुल्लाह के गलाफ को आग लगी, काबा जला, छत भी जली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो दुम्बा जो ज़िबा हुआ था इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये में, उसके सींग भी बरकत के लिए काबातुल्लाह की छत में थे, वो भी जल गए। और जब इधर ये वाकया हुआ, ये काबातुल्लाह पे पत्थर बरसा रहे थे यजीद के भेजे हुए फौजी, तो पीछे से पैगाम आया कि वो नापाक जहन्नम में पहुंच चुका, वो मर गया। वो इस हालत में मरा, तौबा भी नसीब नहीं हुई, करता कबूल कैसे होती। गया किस हालत में, जिस वक्त उसकी फौज काबातुल्लाह पे पत्थर बरसा रही है, इमाम हुसैन पर नहीं, ना नबी के रोजे पर, ना किसी सहाबी पर, ना किसी सैयदारे पर, ना अल्लाह के घर काबातुल्लाह पर पत्थर बरसा रही है उसकी फौज। उसको बचाने वाले थोड़ी सी शर्म करें। अगर तुम्हें शर्म नहीं है इमाम हुसैन की, तुम्हें शर्म नहीं है 700 सहाबा की, 10,000 ताबईन की, तुम्हें शर्म नहीं है नबी अस्सलाम के रोजे और मस्जिद नबवी की, कम से कम काबे का हयाई कर लो। वो दुश्मन सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की आल का नहीं है, वो नबी अलैहिस्सलाम का भी दुश्मन है, वो सहाबा का भी दुश्मन है, वो ताबईन का भी, और वो अल्लाह के घर काबा का भी दुश्मन है। जब ये खबर आई तो अब ये इसकी फौज यहां से भागी मक्कातुल मुकरमा से। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा यहां से भाग निकलो, वो मर गया खबीस, कहीं ऐसा ना हो कि हम पर यहां पत्थर बरसने शुरू हो जाए, हम अल्लाह के घर पे पत्थर बरसा रहे हैं और जिसके कहने पे ये करे वो तो रहा नहीं, यहां से भागो जान बचा के। फिर यहां से ये भागे, कुछ मारे गए अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के साथियों के हमले की वजह से, कुछ यहां से भाग निकले। इस हालत में वो मरा, और जब वो मर गया, अब मक्कातुल मुकरमा के बचे हुए लोगों ने और मदीनातुर रसूल और इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने जो बच गए थे, उनकी नापाकियों से उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की बैत कर ली, आप हमारे खलीफा हैं। एक रवायत में यह भी है कि जब यजीद मर गया तो उसका बेटा था माविया असगर, तो वो इंतहाई नेक आदमी था, पक्का नमाजी। लोगों ने कहा जनाब तख्त संभालिए, बाप मर गया। उसने कहा मैं इस तख्त पर बैठूं जिस तख्त पे इमाम हुसैन के खून का धब्बा लगा हुआ है, ना मेरा बाप इस काबिल था, ना मैं इस काबिल हूं। जाओ जाके बैत करनी है तो मदीने चले जाओ, जाके मोहम्मद ज़ैनुल की बैत करो। 40 दिन या 3 महीने वो जिंदा रहा इस वाक़े के बाद। फिर वो घर रहता, वहीं नमाज पढ़ता, वहां ही फौत हो गया। अब ये अल्लाह की मर्जी है। बाप सहाबी रसूल, कातिबे वही, सैयदना अमीर माविया, जिनके हाथ पर इमाम हसन बैत करे, इमाम हुसैन बैत करे, बाप ऐसा आला जिसके लिए अल्लाह के नबी कहे या अल्लाह मेरे इस माविया को हिदायत याफ्ता बना, हिदायत बांटने वाला बना। बाप की शान ये, और बेटा इतना नापाक यजीद मनहूस, और फिर उसका बेटा वो कैसा नेक। अल्लाह की शान है, अल्लाह जिंदों में से मुर्दा, मुर्दों में से जिंदा को पैदा कर देता है। अब जब ये भी दुनिया से चला गया
अब यहां मिरवान ने ऐलान कर दिया, ये मरवान वो खत लेके आने वाला, वो मनहूस, इसने कहा कि मैं तुम्हारा बादशाह हूं। यहां दो रवायतें, या तो शाम और दमिश्क के लोगों ने अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की बैत ही नहीं की थी, या इसके उठने के बाद उन्होंने बैत तोड़ के इसकी बैत कर ली। अब सारा मुल्क शाम और दमिश्क, यहां ये मरवान बन गया हुक्मरान। मक्का मुकरमा उसके इर्द गिर्द और मदीना तो रसूल के इर्द गिर्द के जो लोग थे उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की बैत कर ली। कूफा खाली था। कूफा में एक बंदा उठा, उसका नाम था मुख्तार सकफी। वो बड़ा आला पाए का खतीब था, उसकी खताबत बड़ी शानदार थी। उसने कहा, जालिमो कूफियो, तुमसे बड़ा पलीत कायनात में कोई नहीं, तुम ही हो जिन्होंने इमाम हुसैन को खत लिखे, बुलवाया, फिर तुम ही ने बैतें तोड़ी, फिर तुम ही उन पर तलवारें चलाई, तीर चलाए, नेज़े चलाए। तुम्हें क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत कैसे नसीब होगी? और मैं हूं आशिक़े अहले बैत, मेरा साथ दो, मैं बदला ना लूं। यह खतीब बड़ा आला पाए का, इसकी आवाज में असर बड़ा था, खिताबत इसकी बड़ी शानदार थी। लोग इसके करीब होना शुरू हुए, हम तेरे साथ हैं। लोग ऊंची ऊंची रोते इसका बयान सुन के, जब ये इमाम हुसैन और उनकी आल की शान बयान करता ना, और साथ ही कहता तुमने जुल्म बड़ा किया है, अब बदला लो, अगर चाहते हो ना हमने बचना है जहन्नम से तो मेरा साथ दो। यहां तक कि 70,000 लोग इसके साथ जमा हो गए तलवारें लेके, बड़ी बड़ी दूर से मुसलमान आ गए कि ये बदला लेगा। फिर इसने बदला लिया भी, और ऐसा इसने शानदार बदला लिया कि इसने वाकई बदला लेने का हक अदा किया। तैयारी पूरी करने वाले इसने कहा, बताओ बात सुनो, वो शिमर कहां है, उसका पता करो जरा। वो इब्ने साद कहां है, वो खोली और शिबर, वो हुरमल, वो सारे कहां है, पता करो जरा उनका, लेके आओ मेरे बारगाह में जरा उन्हें। अब लोग इसकी बात तो कर चुके थे, कूफा के लोग और इर्द गिर्द के लोग। अब जनाब वो इब्ने साद जिसने रय की हुकूमत के लालच में इमाम हुसैन का मुकाबला किया मैदान करबला में, इसके पास सिपाही पहुंचे तो इसका बेटा बाहर आया, कहा बाप कहां है? कहता है तस्बीह कर रहा है, गोशा नशीन हो गया मेरा बाप। अब वो कुछ नहीं कहता, उसका तल्लुक ही कोई नहीं सियासत से, वो अल्लाह अल्लाह करता है घर बैठ के। उन्होंने कहा उसे जरा बाग खींच के लाओ। अब उसे अल्लाह अल्लाह याद आई, तब उसकी अल्लाह अल्लाह जब जब इमाम हुसैन के सामने खड़ा था मैदान करबला में, ले आए इसको खींच करके। तो मुख्तार ने कहा भाई बताओ तुम्हारा वो रय की हुकूमत कहां है? और सिपा सलार बता, वो तेरे उहदे, वो तेरे इनामात जिनका तुझसे वादा किया गया था वो कहां है? अभी तो 6 साल भी नहीं हुए, क्या हुआ? अब उसने इसको सामने खड़ा किया, दायां हाथ काटा, बायां हाथ काटा, दायां पांव काटा, बायां पांव काटा, आग लाके आग में फेंक दिया और सर काट के मदीना में भेजा मौला अली के शहजादे मोहम्मद बिन हनफिया को। ये वो मनहूस जिसने आपके भाई का मुकाबला किया मैदान करबला में, इसका सर लीजिए, का पता करो शिमर कहां है। शिमर को ले आए, उसने धूप में बांध दिया। ये करता हाय पानी, हाय पानी, कहता लाओ पानी, इसके सामने रखो पानी, और इससे कहो तुम्हें मिलेगा नहीं, तुमने ये पानी बंद किया इमाम हुसैन पर। इसी तरह उसने एक एक को पकड़ा और सजाएं दी, किसी को आग में जलाया, किसी को सूली पे चढ़ा दिया, और सबके सर काट के मदीना में भेजे मोहम्मद बिन हनफिया के पास, ये मौला अली के शहजादे इमाम हुसैन के बेटे। अब उसने सारा सफाया कर दिया, ये सारे मर गए। तो उसने कहा बात सुनो, अब ये बताओ उस लश्कर में शामिल कौन कौन था? ये भी शामिल था, वो भी शामिल था, वो भी शामिल था, जिस जिसका नाम है उसने छोड़ा किसी को भी नहीं। तो फिर रह तो नहीं गया, ये कोई नहीं रहा बाकी यहां का। अब ये बताओ इमाम हुसैन की शहादत में खुश कौन कौन हुआ था? उनके नाम बताओ मुझे। लोगों ने जिसका भी नाम बताया, चाहे गलत ही बताया, छोड़ा उसने उसको भी नहीं। यहां तक कि 70,000 लोगों को जिबा कर दिया उसने। अभी 6 साल नहीं इमाम हुसैन को शहीद में पूरे हुए, सारा सफाया कर दिया। वो इमाम हुसैन के दुश्मन, वो मुकाबले में आने वाले, वो खुश होने वाले सारा दुनिया से गए। अब उसने खत लिखा इब्ने जियाद को, ये यहां से भाग गया, कूफे से मिरवान के पास चला गया, वहां जाके सिपा सलार बना सारी फौज का। उसने कहा मैंने तेरे सारे साथी जहन्नम में भेजे हैं, आ मेरे मैदान सामने मैदान में। तो दुश्मन इमाम हुसैन और मैं गुलाम इमाम हुसैन हूं, निकल मेरे सामने। उसने कहा मुझे चैलेंज, मैं सारी फौज का सिपा सलार हूं दमिश्क में, मुल्क शाम में, और वो सिर्फ कूफे में है। कोई बात नहीं,
लेकिन 10 मुहर्रम का दिन हो, पूरे 6 साल के बाद मैदान करबला में नहर फरात के किनारे दोनों लश्कर आमने सामने, इब्ने ज़ियाद और इधर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिपा सलार, उनके बेटे मालिक इब्ने उश्तर सिपा सलार इधर मुख्तार की फौज के, इसके फौजी कुछ मारे गए, कुछ भाग निकले, कुछ पकड़े गए, खुद भी भागा सही पर पकड़ा गया। यह एक वाकया सुनिए। हजरत मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन उन शख्सियात में से हैं जो दुनिया में बड़ा रोए हैं। आप करबला के बाद खाना नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे, 2 घूंट लिए छोड़ दिए और कहते मुझे सकीना की प्यास याद आती है, 2 लुकमे ये खाना छोड़ दिया कि उठा लो बस दिल नहीं करता खाने को। आपने सारी जिंदगी बस कुरान ही पढ़ा, नवाफल ही पढ़े। ऐसा होता थोड़ा सा खाना लेते और मदीने से बाहर चले जाते, खेमा लगा लेते, जाके वहां 2-2 महीने रहते। ये मनहूस वहां से भागा तो यहां आ निकला, इतनी दूर से भागा वहां करबला के मैदान से, यहां पहुंचा मदीने के पास, इसने खेमा लगा हुआ देखा। अब पीछे मुख्तार की फौज, अकेला भाग रहा है, कोई बंदा भी साथ नहीं, सख्त प्यास, गर्मी का मौसम। इसने जब ये सोचा कि चलो मैं यहां से पानी लेता हूं, फिर आगे भाग निकलूंगा, जान बचाऊंगा, लेकिन अगर पानी यहां से ना मांगा तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। इसने जब खेमे का पर्दा उठाया, सामने मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन। अब इसने पहचान तो लिया, पर मरता करता क्या, प्यास बड़ी थी। कहता है हजूर पानी मिलेगा? आपके सामने कुरान था, पलट किया, आपने देखा, कहा मिलेगा। खुद पानी भरा कटोरे में पेश किया इसको, इसने पिया। कहता हजूर और मिलेगा? आपने और दिया। हजूर और मिलेगा? आपने 3 कटोरे खुद भर के पेश किए। जब 3 कटोरे पी चुका, कहता हजूर आपने मुझे पहचाना नहीं है? कहा तुझे नहीं पहचानता जालिम, इसने मेरा पूरा खानदान जा रहा है। कहा हजूर फिर ये कम नवाजी कैसी? कहा वो तेरी मेहमान नवाजी थी, हमारी मेहमान नवाजी है। कहा हजूर मुझे ईमान दीजिए। कहा तुम्हें ईमान तो अल्लाह नहीं देगा, मैं कैसे ईमान दूं? पकड़ा गया, इसका सर उतारा गया और मुख्तार के सामने पेश कर दिया गया। इमाम तिरमिज़ी अपने जामे तिरमिज़ी में लाए कि सारे सर सामने पड़े हुए थे, इब्ने ज़ियाद का सर भी था। तो शोर उठा, सांप आया, हाय वो सांप आया। वो सांप आया, उसने सारे सरों को देखा, फिर वो इब्ने ज़ियाद के नाकों में दाखिल हो गया। कुछ देर बाद बाहर निकला, चला गया, फिर वापस आया। 2-3 बार ऐसा ही हुआ, वो सांप आता, इसके नाक में दाखिल होता, निकलता, फिर दाखिल होता, निकलता, फिर दाखिल होता। इस हाल में ये मर गया। ये सलूक हुआ इसके साथ। अब इस तरह इमाम हुसैन के सारे दुश्मनों का सफाया हो गया। वो अल्लाह का वादा जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम है, क्या या शहीद किए गए तो उनके बदले में 70,000 लोग ज़िबा किए गए। आपके नवासे के कत्ल के बदले में 70,000 और 70,000 लोग ज़िबा किए जाएंगे। अब इमाम हुसैन का नाम तो क़यामत तक उसके बाद भी बाकी रहेगा। वो तो जन्नत में भी सरदार होंगे। ये मर गए, इनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं था, कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं था। ये आग में जलाए गए, ये सूलियों पे चढ़ाए गए, ठीक है, जिसमें टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, इनका कोई पुरसाने हाल भी नहीं था। और इमाम हुसैन को तो लोग आज भी सलाम पेश करते हैं। तो जिंदाबाद वही रहेगा जो इमाम हुसैन के पीछे चलेगा, और जो मुकाबले में आ गए उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं। आज भी आपको इमाम हुसैन की औलाद हर शहर में मिलेगी। आपने सोदरा में देख लें, वजीराबाद में देखें, सियालकोट में देखें, गुजरांवाला में देखें, पूरा पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में देखें, और बताओ लाओ कोई बंदा जो ये कहे मैं यजीद का बेटा हूं, मैं शिमर का हूं, मैं खौली का हूं, मैं इब्ने ज़ियाद का हूं, मैं इब्ने साद का हूं। उनका नाम बाकी, उनका पैगाम बाकी। अल्लाह ने भी कहा इन्ना अतैनाकल कौसर, महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया। फसल रब्बी का वनहर, रब के लिए कुर्बानी कीजिए, नमाज पढ़िए। इन्ना शानियका वल अबतर, आपका दुश्मन ही जान जाता है, उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। और आपकी औलाद तो सारी दुनिया में दीन की खिदमत करेगी। अब देखें यजीद की हुकूमत ने क्या दिया इस्लाम को। वो कम 3.5 साल बादशाह रहा तो क्या दिया।
جن کا ایک باقی بچا تھا میدان کربلا میں. امام زین العابدین بتاؤ غوث پاک کس کی اولاد سے ہیں؟ داتا صاحب کس کی اولاد سے ہے؟ پیر میر علی شاہ کس کی اولاد سے ہے؟ خواجہ معین الدین کس کی اولاد سے ہے؟ دنیا کو جتنا بھی اسلام دیا ہے، دین دیا ہے، وہ امام حسین کی اولاد نے دیا ہے. وقت میرا پورا ہو چکا. صاحب وہ آئے، کوشش کریں کہ امام حسین کا صرف نام نہ لیں بلکہ آپ کے کیے گئے آخری سجدے کی نسبت سے پکے نمازی بھی بنے، نام کے نہیں بلکہ عمل کے حسینی بنے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.